India with independent charge of forest, environment and climate change. So we will have the presidential address of the Honorable Vice Chancellor of Lucknow University and General President of Indian Science Congress Association, Dr. S.V. Nilsey. This is a unique session in Indian Science Congress of Science in India Research Text. This is the first time we have made an attempt to have the component of and the scientific knowledge in ancient text. All of the Veda, Yajurveda, and a lot of science and technology. And all this is developed with the based on the observations and deductive and inductive logic. There are those who at that time. इस साइंस कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर निलसे, मुंबई विश्वविद्यालय के कुलपति बेड़ुकर जी, कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलगुरु महावैद्य नरेश चंद्र जी, मेरे साथी जो बायोडाइवर्सिटी को देखते हैं, मैंने और ये चूंकि साइंस कांग्रेस है तो भटकर जी प्रणाम आपको, क्योंकि आप साइंस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मुझे आवश्यकता थी कि इस भाषा में बोलूँ, अगर विदेशी लोग हैं तो फिर अंग्रेजी से शुरू करूँ, लेकिन हिंदी चलेगी मैं आज का ये the issue today of the symposium, Ancient Indian Sciences to Sanskrit, I think is a very good topic to be discussed, because knowledge is superior. And those who want to pursue the path of knowledge don't see what is the source, how old it is. Every old may not be gold, but all old is also not waste. And therefore, we must be very clear as to what science means. But really, I am happy to be here with you. काश मैं उमा जी जैसे संस्कृत की भाषण दे सकता, लेकिन नहीं देता हूँ। लेकिन मैं ये करता हूँ, दिन की मेरी शुरुआत 6:55 को संस्कृत समाचार सुन के ही होती है। और दिल्ली के घर में मेरे आप आओगे तो सभी भारतीय संविधान की भाषाओं में लोगों का स्वागत का फलक एक है, उसमें पहले सुस्वागत से शुरुआत है, फिर आपका स्वागत है, फिर आपका स्वागत है, and you are welcome. So all languages flow thereafter. So it begins with Sanskrit. और एक बार संस्कृत समझ में आया तो भारतीय भाषा समझ में आती है, इसीलिए उसे शायद जननी कहते हैं। I think today's symposium is concerned, and the objective seems to be very clear, secular, and purely academic. The scientific community gathered here for noble cause of exchange of knowledge should pay attention to this Sanskrit knowledge fund and use it for human development. Germans have done it. Sometimes I feel that more religiously, more sincerely, Germans have done this extensively globally. Germans were perhaps the first to recognize Sanskrit as the language of linguistic expression of science and culture in ancient India. This is
one thing that modern Germany acknowledges about India and what it has learned from ancient India. That India herself perhaps has not acknowledged Gilligan. Phenomenon of German interest in India and Sanskrit is noteworthy because German had no colonies in India. उनकी कोई यहाँ राज नहीं था जैसे यूरोप के अनेक देशों का था, फिर भी जर्मन ने ये इंटरेस्ट दिखाया and this suggests a rational, pragmatic and informed interest on their part rather than incidental one or as a matter of convenience. I think this conviction actually leads us to the higher scale of knowledge. I am in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. जैसे बताया हमारा पहला वाक्य है, घोष वाक्य है, प्रकृति रक्षित रक्षिता. Nature takes and cares for every human and all species, biodiversity, everything. जैसे गांधी जी कहा करते थे कि ये पृथ्वी हर इंसान और प्राणी की जरूरतों का ख्याल रखती है. It can take care of its needs, not of its greed. और ये ग्रीड के कारण जो हुआ है, हमने देखा है कि क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन जो हुआ है, तो वो है. And Sanskrit in many ways a foundational source of environmental ideas in India. The Sanskrit word Paryavaran means that which encircles, that which is around. That is our environment. So Indian sages have focused on two important thoughts. One is that entire universe is one single family, and the other is Sarve Vishwamitra Santu, let everybody be happy. तो ये विज्ञान और संस्कृत का संगम कहाँ होता है? विज्ञान एक बगावत है. विज्ञान अंधश्रद्धा के विरोध में है. विज्ञान ये सिद्ध करता है, चैलेंज करता है, जो स्टेटस को है इसको चैलेंज करता है. Sometimes I feel that why India lacks in innovation. Yes, we lack in innovation. Why? Because our education system from primary level doesn't allow the curiosity to take place, to question the fundamentals. जैसे अभी मेडिकल सर्जन ने कहा कि न्यूटन ने गणित लिखा था, 300 साल आबादी था, कोई नहीं उसका जवाब दे सकता था. एक 16 साल के बच्चे ने दिया. वो 16 साल का बच्चा क्यों दे पाया? क्योंकि उसका लिमिटेड नहीं है, उसका कोई इनहिबिशन नहीं है, वो फ्रीली थिंक कर सकता है. सन 2000 में अटल जी प्राइम मिनिस्टर थे, तब मैं IT फॉर मास्टर्स के वर्किंग ग्रुप का चेयरमैन था और हम MIT में गए. मैं 7 दिन रहा. वहां हमने एक देखा कि एक MIT मीडिया लैब एशिया प्रोजेक्ट को MOU तैयार किया. वापस आए. भारत ने कमिट किया था 1,000 करोड़ रुपए हम देंगे. क्या था? अटल जी बहुत छोटा पूछते थे, लेकिन मैं आगे की बात मुझे पूछा हम इसमें इंपोर्ट क्या कर रहे हैं. मैंने कहा हम इंपोर्ट वो कर रहे हैं कि जो विज्ञान की संस्कृति है, जो कल्चर है, जो मेथोडोलॉजी है, जो फ्रीडम है. और तो प्रधानमंत्री ने भी यहाँ कहा कि विज्ञान को ब्यूरोक्रेटिक नहीं होने देना है. और यही सही है. जब विज्ञान कोई ऑफिस में कितने साल एक्सपीरियंस है, उससे वैज्ञानिक बड़ा या छोटा नहीं हो सकता. विज्ञान को दिल की आवाज भी है और दिमाग की उपज है, और दोनों का सहयोग होता है, तब एक विज्ञान की परिकल्पना होती है और उसमें आगे बढ़ता है. उसको कोई सीमा नहीं होती. मैं अभी मेरे डिपार्टमेंट का पूरा एक नेगेटिव इमेज था, उसको पॉजिटिव करने में लगा हूं. तो उसमें मैं एक प्रयोग अभी इस महीने कर रहा हूं. भारत में 3 जगह मैं एक शिविर, चिंतन शिविर का आयोजन कर रहा हूं. और मेरे अधिकारियों की नापसंदगी के बावजूद भी मैंने ये तय किया, कुछ अधिकारियों की नापसंदगी
35 और 45 की उम्र के जो मेरे अधिकारी हैं, यानी जिनके सर्विस में 7-8 साल या 15 साल हुए हैं और जिनका 20 साल अभी स्टेक बाकी है, ऐसे अधिकारियों को लेकर मैं उसको चिंतन करूंगा, उससे लूंगा आइडिया, क्योंकि देर आर आइडियाज। युवाओं में क्षमता है, युवाओं में कल्पनाएं है, युवाओं में वो जज्बा है, तर गुजरने का संकल्प है, और उसी के सहारे विज्ञान भी आगे बढ़ता है और समाज भी आगे बढ़ता है। यही उसकी श्रृंखला होती है। और इसलिए हमने देखा, जैसे मेरे से जो उदाहरण दिया गैलीलियो में साथ दे रहे थे कि सूरज घूमता है या पृथ्वी घूमती है। अब गैलीलियो ने सच कहा तो उसको सजा हुई, लेकिन विज्ञान के चलते फिर देर दुरुस्त आए और 2004 में गैलीलियो के पर जो लगा था प्लॉट वो निकाल दिया और गैलीलियो सही था, और जो सजा देने वाले गलत थे इसका ऐलान भी किया। ये भी मान्यता की एक मिला, और इसलिए विज्ञान यही होता है, इट्स निगेशन ऑफ सुपरस्टिशन। बट साइंस इज नॉट ऑल्सो ए क्लोज थिंग। कोई जो भी कल्पना आएगी उसको परिशीलन करना, उसका एनालिसिस करना, उससे कुछ निकालना, ये साइंस का मकसद होता है। और इसलिए knowledge is a progressive process. All issues must be debated and taken forward. Whatever is good will survive. Whatever is not relevant will perish. That is the law of nature. And what India requires is, as I stressed, is innovation. तो मैं कह रहा था अटल जी ने जब मुझे पूछा तो मैंने कहा कि भैया वो कल्चर ला रहे हैं, इनोवेशन, और उसकी आज मुझे लगता है बहुत जरूरी है। Innovation happens if we allow curiosity to question all established wisdom. इसलिए मैंने कहा कि विज्ञान एक बगावत है। उस बगावत को जब हम अलाउ करेंगे तब विज्ञान आगे बढ़ता है। The point therefore is that ancient Indian scientific theories, without much tools and machines, were based on minute understanding, observations of the centuries, and based on experience and logic, all put together. That wisdom must be recognized. That wisdom has a relevance today. अगर जर्मन और दूसरे लोग हमारे भाषा से और हमारे पूर्व विज्ञान में जो है उसका आधार लेके नया विज्ञान और नए उपकरण पैदा कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकेंगे? करना चाहिए, relevant है तो लेंगे। And therefore I conclude with one reason saying, Tejasvina Vidha Vadhitamastu Ma Vidisha. Let our knowledge be lustrous and let us not debate on superiority issues. And therefore with that, I wish this symposium as well as the exhibition, which is an exciting exhibition outside, all the best, and your deliberation. Thank you. Thank you. National Biodiversity Authority to express his views. Genetic resource from this country can be tracked, and if somebody is making money out of that biological resource, we can see benefits sharing on mutually agreed terms. So this is what this Biodiversity Authority is for, this house, and each is here for allowing me this opportunity. Thank you very much. Thank you, sir. Civilization of the world. But लेकिन उनका भाषण शुरू है। Please, very important. Please, please take it. Don't. मी बोललो काही कंट्रोवर्सी नाही, काही नाही. जे बोललो ते मी त्याचं सांगतो, पण बातमी काय द्यायची ते सांगतो. मी असं हे बघ इकडे मागे घे, 5 मिनिटांनी जा. त्याला बोलू. Honorable Minister,
of India's great contributions to science and technology through the ages, the lovers of Sanskrit, and all the knowledge seekers. The first why did it take 100 years for this? I think the question to be asked is definitely आप जरा रुकिए, फिर मैं बात करता हूँ। विज्ञान एक बगावत होती है, वो सिस्टम को चैलेंज करती है, एस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज करती है। आज जो प्रचलित नियम है उसको भी वो चुनौती देता है, और जब ऐसा होता है तभी नए नियमों का, नए सिद्धांतों का निर्माण होता है। तो विज्ञान एक निरंतर बगावत से नए निर्माण की प्रक्रिया है, और इसलिए जो प्राचीन काल में जो भी वैज्ञानिक सोच दुनिया भर में है और संस्कृत में भी है, तो उसका आधार जर्मन ने बनाया अपने तरक्की में, और वो एक्नॉलेज भी करते हैं। वैसे जो भी सोर्स होगा उसका उपयोग विज्ञान करता है, और जो सही है वो टिकता है, जो सही नहीं है वो नहीं टिकता है। इसलिए इस तरह के अवसर और इस तरह की परिचर्चाएं होनी चाहिए कि हमारे प्राचीन इतिहास में जो भी नए विज्ञान के जो भी विचार आए, उस विचारों को आज की दुनिया में वो कितने प्रासंगिक है, उसके आधार पर क्या नया कुछ काम हो सकता है। और ये काल का केवल समय नहीं है, वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, और जो भी सोर्स है, जहाँ भी ज्ञान है, वहाँ से विज्ञान की निर्माण होता है, और वो प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी। इस दिशा में ये साइंस कांग्रेस का अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण है। आज की परिचर्चा भी उसकी दिशा में एक उसका, लेकिन बहुत सारी चर्चाएं चल रही है। आज देश इनोवेशन में कम है, और हमारे यहाँ शोध बढ़ने चाहिए। और जैसे कल प्रधानमंत्री जी ने कहा कि शोध को ब्यूरोक्रेसी में बांधना नहीं चाहिए। शोध एक आज़ाद प्रक्रिया है, और उसको कोई उम्र की सीमा नहीं होती है, वो प्रतिभा के तहत आगे आती है। और इसलिए शोध ज़्यादा से ज़्यादा लगाना, यही हमारे आर्थिक उन्नति का भी आधार होना चाहिए, हमारे जीवन को और सुनहरा बनाएगा। इसलिए विज्ञान की पूजा देश में होनी चाहिए। अद्यतन विज्ञान, यही हमारा धर्म है। आपको नहीं लगता है कि विज्ञान साइंस कांग्रेस में 100 साल लगे इस सब्जेक्ट को लेने के? नहीं, 100 तो देरी हो बहुत गए, ऐसे नहीं ऐसे 100 साल हो गए। यहाँ पे इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। ये आपका कहाँ है? ट्रांसफर ले। आज बड़े यहाँ पे स्पीकर्स आए थे। इसी समय में आज कई अखबारों में ये खबर छपी है कि जो वैदिक विज्ञान और विमान, इस टेक्नोलॉजी को लेकर जो इस कार्यक्रम में विषय उठाया जा रहा है, उसको कहाँ लेकर उठाए? मेरे सामने तो किसी ने उठाया आज शेड्यूल में है। नहीं, मुझे पता नहीं। लेकिन सर आप मैं इसमें वैज्ञानिक क्या- नहीं हो तो मुझे वो पता नहीं। मैंने एक प्रक्रिया, 2 ही मेरे मुद्दे हैं जो मैंने भाषण में भी बताए कि भारत में शोध की कमी है। वो वी लैक इन इनोवेशन, वी मस्ट इम्प्रूव। और इनोवेशन कैसे होता है? जो भी ज्ञान का भंडार इतिहास का भी हो, आज का भी हो और कहीं का भी हो, उसका विचार करते हुए उसको आगे ले जाना। अगर उसमें तथ्य है, उसमें अगर कुछ प्राण है तो आगे ले जाना, नहीं तो त्याग देते हैं। तो इसलिए द रेलेवेंट विल सर्वाइव, द इररेलेवेंट विल पेरिश। दैट्स व्हाट माय
बेसिस। आपने बोला है सर कि जो पुराना ज्ञान है उसको आगे बढ़ाना चाहिए। नहीं, ऐसा मैंने नहीं कहा, मतलब उसको एक्सप्लोर करना चाहिए। ऐसा नहीं है, वो जो विज्ञान का वो है, किसी का भी कहीं का भी हो, उसको एक्सप्लोर करना चाहिए। एक्सप्लोर तो कर देना, उसमें क्या बात है। उसमें एक बात मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर मुझे कोई इंग्लिश की किताब चाहिए तो भी मुझे चाहिए। आराम से मिलती है, तो इंटरनेट के ऊपर खरीद सकता संस्कृत हूँ। नहीं मिलती। अच्छा, परमेश्वर मोशन भास्कराचार्यांनी दिलं टाइम नंबर फिजिक्समध्ये लिस्टेड आहे, वर्ल्ड रिकॉग्नाइज 1 रिव्होल्यूशन पर डे. हे भास्कराचार्यांनी 900वी जयंती आहे. त्यांनी मुलांना लोकसभे पॉईंटसाठी साधं सोपं मॉडेल की लोकस काय करता. मैंने अभी मुझे फ्लाइट पकड़नी है. अच्छा, त्यांचं प्राण्यांचं जॉबप्रमाणे त्या त्या व्यक्तीच्या आणि हे मॉडर्न जे सध्या वापरतात त्यांच्याशी हे चांगलं. गुड. 7 किंवा 8 मिनटात. रुकते हुए हमारी एग्जीबिशन है ये पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कहाँ है? रास्ते में एयरपोर्ट। सर अभी कुछ कहेंगे असलो नहीं, अभी बोला ना मैंने, जो भाषण ही था वही मेरा. ठीक है जी. वंस अगेन रिक्वेस्टिंग सर प्लीज साइड